absolute delight to come to your midst and share the word of God. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन का सेवकाई करने के लिए I would like to thank God for this blessed opportunity for making things possible to come to your midst. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार सुनहरा अवसर मेरा जीवन में प्रदान किया है ताकि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को लेके आऊं। And also I would like to thank the local assembly at Gwalior for making arrangements. और ग्वालियर के स्थानीय कलीसिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का सभा का आयोजित किए हैं। And also Brother Ranjit Bagh for making arrangements, and all the saints from different parts of North India logging in to listen to the word of God. और भाई रंजित को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से परमेश्वर का लोगों को इकट्ठा करने के लिए I'm using the Hindi script from the Bible of Hindi Bible of from Bible Society of India. मैं बाइबल सोसाइटी इंडिया का जो हिंदी भाषा का वचन में इस्तेमाल करता हूं। But if that is not the right version, please tell me. I will follow the right version because I don't know. I know very little Hindi, 10%, 20%. So I don't know whether that's the right translation you follow. अगर अनुवाद में कुछ गलतियां हैं तो आप लोग मुझे सही रास्ता में लेने के लिए आपका मदद मुझे चाहिए। So tell me next time. I'll try to change. If it is okay, I'll just continue with that. अगर ये सही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर सही नहीं है तो आप लोग मुझे बताइएगा। Okay. We're going to read one verse from the book of Acts, chapter 2 and verse 42. आइए हम आज के इस शाम के मनन के लिए प्रेरितों का दूसरा अध्याय और उसका 42 आयत पढ़ेंगे। Yes, brother, if you can read it. वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। We're going to see these four things today. There are four things mentioned in this verse. और इस आयत में चार चीजें जिक्र किया गया है, उस चार चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। Now, what is fellowship? What is the definition of fellowship? और संगति का परिभाषा क्या है? For the testimony of the local assembly, fellowship is very, very vital. और स्थानीय कलीसिया का जो संगति है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Without fellowship, the local testimony will die out. और स्थानीय कलीसिया का बिना संगति से उसका कोई कुछ मान्य नहीं रखता है। And also the local testimony will not be effective. और स्थानीय गवाह उसका सही मतलब दूसरे लोग तक प्रदर्शित नहीं हो सकता है। Now, fellowship is, I'll give an example, it's not fellowship. Suppose you go to another brother's house and there you had a nice meal, you talked for a long time, then one of you might say, today we had wonderful fellowship. उदाहरण तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप मान लो कि एक भाई के घर में जाते हैं और उनके साथ खाना पीना करते हैं और कुछ बातों को चर्चा करते हैं उसके संबंध में है। Then we had a wonderful fellowship, but that's not fellowship, that is friendship. और आप सोचते होंगे कि वो एक संगति है, वो संगति नहीं है लेकिन वो एक मित्रत्व है। Suppose some of the believers go to picnic from Gwalior to Agra to see Taj Mahal, and then you all saw it. Then you had wonderful time, and then you came back and said we had wonderful fellowship. और ग्वालियर की स्थानीय कलीसिया का विश्वासी लोग सब लोग मिल करके आगरा में ताजमहल देखने के लिए जाते हैं और वहां मनोरंजन करके वापस आते हैं और कहते हैं कि हमारा बीच में एक बहुत ही अच्छा संगति था। That is not fellowship, it is a social gathering. वो एक संगति नहीं है लेकिन एक सामाजिक लोगों का इकट्ठा है।
But I'll tell you tonight what is fellowship and how do you distinguish it. आज इस शाम के समय में आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ और संगति क्या है और उसका विपरीत यानी उसका जो धारणाएं वगैरह क्या है वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। Fellowship is appreciation of a common thing. और संगति वो है जो जो एक सामान्य विषय को हम शाबाश देते हैं। If two people like one object, they had fellowship with that object. और दो व्यक्ति अगर कोई भी एक चीज से एकता रखते हैं उसको कहते संगति। So fellowship is basically appreciation of one common object that will attract everyone towards that object. एक वस्तु के प्रति सब लोगों का एक शाबाशी देते हैं उसको हम संगति कहते हैं। But in the Bible, in the New Testament, it is not the thing that that is our cause of the fellowship. It is the person. और जब हम बाइबल में नया नियम में जब देखते हैं संगति उसका मतलब संगति का मतलब ये नहीं है, संगति का मतलब ये व्यक्ति के साथ संगति रखना है। So it is in the New Testament, it is the common appreciation of one person. और नया नियम में एक साधारण तौर पे से एक व्यक्ति को शाबाशी देते हैं वो है संगति। Here we can see that the basis for fellowship is apostles' doctrine. और यहाँ पर देखते हैं जो संगति का आधार वो ये है कि प्रेरितों का शिक्षा। Now, some people argue and say doctrine is not important, practical life is very important. कुछ लोग वाद विवाद करके कहते हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण विषय नहीं है लेकिन प्रायोगिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Some people argue and say, if you know everything in the Bible and you don't do it, compared to that, the person knows very little and he did everything, he is a better person. और कुछ लोग ये भी कहते हैं आप वचन अच्छे से जानते हैं और उसको प्रायोगिक जीवन में लागू नहीं करते हैं और जो व्यक्ति थोड़ा सा जानता है और उसको लागू करता है उसका मतलब वो सबसे अच्छा है। Both are extremes. Both Bible doesn't support both of them. वो दोनों धारणा को बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। In the Old Testament, when the children of Israel had to leave Egypt, God told them that you have to roast the lamb which was killed and whose blood is applied on the doorpost, and you have to eat the lamb. जब हम पुराने नियम में इजरायलियों के जीवन में जब देखते हैं जब वे मिस्र से बाहर रहे थे उसी समय जिन मेमना को उन्होंने मारा था उसको वो लोग अच्छे से आग में भूंज करके उसको खाना था। God told them you have to eat the head, you have to eat the inwards, and you have to eat the legs. और परमेश्वर उनको ये कहा था उस मेमना का सिर को और उसका अंदर का जो चीज है और पैर को खाने के लिए। Now you have to eat the head because you need the wisdom, because the path you are going to go through the wilderness, you don't know the route, you never been through that, it is a new path. परमेश्वर इसीलिए इजरायलियों को कहा था कि तुम उस भेड़ का उस मेमना का सिर को खाना की ताकि तुम लोगों को बुद्धि और ज्ञान मिले जब उस नए जगह में तुम जाते हो। How many times when you are going to a new place, you stopped and asked a person, sir, is the village I want to go, is it in the same direction or in a different way? हम बहुत ही समय ऐसा होता है अगर हम एक नया जगह में जाते हैं काफी बार रास्ते में हम लोगों को पूछताछ करते हैं कि यही जो रास्ता है वो फलाना जगह में जाता है। Then he will say you are exactly going in the opposite direction. और उनमें से लोग बोलते हैं कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। You go back to the same place where you started. It is 10 kilometers on the other side of Gwalior, he'll say. अगर ऐसा है तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इस रास्ते में जाएंगे तो 10 किलोमीटर आपको घूमना पड़ेगा।
So reason is if you're not traveling along the right path, your journey is utter waste. और अगर आप उस सही राह पर यात्रा नहीं करते हैं तो आपका यात्रा निसफल होगा। So what you are doing is right or wrong. If you don't know, then you are in big trouble. So doctrine will tell whether what you are doing is right or wrong. अगर आप जो करते हैं उसको जानते नहीं है कि ये सही है या गलत है, और आपके पास अगर शिक्षा नहीं है कि ये सही है और गलत है, तो उसका मतलब आप अपने जीवन को बहुत ही समस्या में लेके जा रहे हैं। So the head will show you the direction towards Canaan, the land of promise. और इजराइलियों को उस सिर को खाने से वो कनान देश की ओर जाने के लिए मदद करेगा। Feet also you need to eat, because if you don't practically do it, nothing happens. You may know everything in the Bible, but if you don't do it, it is as if you don't know anything. और पैर भी खाना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारे पास पैर नहीं है तो फिर हम कैसे उस जगह में जाएंगे। And also God says head and feet are not enough. That means you need to know what you have to do. And second thing, you have to do it, but you also need inwards. और ये दोनों काफी नहीं है जो हमको सिर और पैर, लेकिन इसके बावजूद और भी हमको अंदरूनी बातें हमको बहुत ही जरूरी है। If you don't have love towards God and do whatever you do it is utter waste according to the Bible. अगर आप परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है और आप कुछ कार्य करते हैं, उसका मतलब आपका सारे कार्य निष्फल है। Your son or daughter might do everything you tell, but if they don't love you, you feel very sad about it. अगर आपका बच्चे लोग आपका जो भी कहते हैं वो आपका प्रेम से अगर कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन वे उनके जीवन में आपके प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका कार्य आपके लिए एक दुखित हो जाता है। In the New Testament, Paul speaks about head, John speaks about the bosom, Peter speaks about the feet. और इन नया नियम में जब हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस सिर के बारे में बात करते हैं और पतरस पैर के बारे में बात करते हैं, और याकूब जो कि यूहन्ना जो कि हृदय के बारे में बात करते हैं। So here in Luke 15, you can see it. The father and son are appreciating the same thing in this portion. और लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 11 से 32 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें पापा और बेटे एक ही चीज को शाबाशी देते हैं। Even in Leviticus chapter 3:1, God said, you can bring a male or female lamb and offer to me. और लेवी व्यवस्था में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सहभागी बलि चढ़ाता है और वो गाय बैल में नर या अथवा मादा पशु चढ़ाते हैं, तो वो प्रभु के सन्मुख निष्कलंक पशु का चढ़ाएगा। So that means after this is offered in the peace offering. भाई जो लोग होस्ट है कृपया करके ध्यान दीजिए कि बीच बीच में किस लोगों का आवाज आता है, तो जिसके वजह से। Yes, thank you. Yes, Uncle, please repeat it once again. So after this is offered in the peace offering, they both eat on the same animal. और ये जो पीस ऑफरिंग जब ये चढ़ाते हैं, शांति का बलि जब जब चढ़ाते हैं, तो उसी का जो मांस को सब लोग खाना चाहिए। That means God is saying your food and my food one and the same, so we have fellowship with each other. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का भोजन और हमारा भोजन एक ही है, जिसका मतलब सहभागिता है। But why male and female is God's appreciation is very high, our appreciation is very low, but doesn't matter, both of the appreciations are in the one same person, Lord Jesus Christ. क्योंकि नर और नारी है, इसीलिए कि परमेश्वर का जो शाबाशी बहुत ही ऊंचा है और इंसानों का शाबाशी बहुत ही कम है, इसका विषय में हम देखते हैं। What does the doctrine do? What does why fellowship is based on doctrine, as according to Acts
2:42. प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 42 आयत के आधार पर संगति क्यों प्रेरितों लोगों के शिक्षा पर आधार है? Because doctrine speaks of the knowledge of God. इसीलिए वो महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभु का ज्ञान के बारे में बात करता है। If you don't know the person whom you are worshipping, how do you know how to please him? अगर जिस व्यक्ति को आप आराधना करते हैं, अगर उसको आप जानते नहीं हैं, तो आप कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं? You might invite someone for a lunch or dinner and you serve 5 beautiful dishes that are relished by everyone in Gwalior, but that person says, I don't eat all 5 of these. अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर में खाना के लिए बुलाते हैं और जो आपके शहर में प्रसिद्ध खाना है, उसको आप देते हैं, 5 प्रकार का जो खाना देते हैं, अगर वो बंदा बोलता है कि मैं इनमें से एक भी नहीं खाता हूं, You feel very sad about it. आप बहुत ही दुखित हो जाएंगे। You will say, everyone in Gwalior loves this food. There will be queue outside many hotels for this food. You might say that. और आप उनको ये भी कह सकते हैं कि इस खाना के लिए ग्वालियर के सारे लोग लाइन पे लगे रहते हैं। But he will say, that might be true. I'm not saying that, but I don't eat it, he will say. वो ये उत्तर देता है कि ये बात सच है, लेकिन मैं इसको नहीं खाता हूँ। When you don't know who God is, what pleases him, we don't know what to offer to him. अगर आप जिस व्यक्ति को आराधना करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो जो कुछ भी आप उनको बलि चढ़ाते हैं, तो वो व्यर्थ है। So doctrine is important. Doctrine is like head. It is the knowledge of God. Doctrine reveals who God is so that we can approach him confidently. और प्रेरितों का शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि ये हमारा जैसा सिर जैसा है कि परमेश्वर को हम अच्छे से जान सकते हैं और उस परमेश्वर को जो प्रसन्न करने के लिए हमको मदद करता है इस शिक्षा। Now, the fellowship here in 1 Corinthians and 1:9, it says fellowship is with a person called Lord Jesus Christ. और प्रेरितों का पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 9 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, संगति है किसके साथ? कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति है हमारा। So, if the fellowship is with a person called Lord Jesus Christ, then we should know him who he is so that we can have better fellowship with him. और संगति वो मसीह यीशु के साथ है, तो अगर हम उसके जानते हैं तब ही हम उनके साथ संगति रख सकते हैं। So we need to know, read the Bible and have this wonderful fellowship with the Son. इसके लिए हम परमेश्वर का वचन से हमको पढ़ना है, सुनना है और हमको प्रार्थना में लगे रहना है, जिसके द्वारा हम उस व्यक्ति को जान सकते हैं। Even the gospel, the center of the gospel is not set of rules. The center of the gospel is a person called Lord Jesus Christ. और सुसमाचार का जो केंद्र बिंदु एक रूल्स नहीं है, एक कुछ नियम नहीं है, लेकिन सुसमाचार का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। Well, if that should happen, if we need to know the person of Lord Jesus Christ, then we need the light. अगर हम उस व्यक्ति को जानना है, तो फिर हमारे जीवन में ज्योति बहुत ही जरूरी है। Without light, we don't know who the person is. और जो बिना ज्योति के द्वारा हम उस परमेश्वर को, उस व्यक्ति को नहीं जान सकते हैं। In 1 John 1:6-7, it is written that we should walk in light. और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 6 और 7 आयत में जब पढ़ते हैं, तो इसमें एक आज्ञा दिया गया है कि हमको ज्योति में चलना है। Anyone who is walking in light has fellowship with the Father and his Son and with other believers. और जो कोई ज्योति में चलते हैं, तो वे पिता परमेश्वर के साथ, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर का संतों जनों के साथ उनका सहभागिता होता है। That's why the light should continuously fall upon the local assembly in Gwalior. इसीलिए स्थानीय कलीसिया ग्वालियर में परमेश्वर का ज्योति हमेशा चमकना चाहिए।
Every time you attend the Bible study, the light will fall upon the assembly. जब जब आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, तब तब परमेश्वर का जो ज्योति आपके ऊपर मंडलाता है। Tonight, I'm trying to cast some light upon the local assembly there so that the fellowship is improved, because light is required for fellowship. आज परमेश्वर का वो वचन हमसे ये देते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्योति को चमका रहने के लिए। If you go to the holy place in the tabernacle, the light inside is coming out of the olive oil. और जब आप उस समागम तंबू का जो पवित्र महापवित्र स्थान में जब आप जाते हैं, तो वहां का जो ज्योति है एक जैतून तेल से वो ज्योति निकलता है। It's not sunlight. Sunlight is outside, in which there is a brazen altar. It is not sunlight. It is the light coming from olive oil burning. ये वो सूर्य का रोशनी नहीं है, ये रोशनी वहां से आता है, जैतून तेल से वो निकलता है। Sunlight is a picture of this world. और जगत का इस सूर्य का रोशनी जगत को चित्रित करता है। In the local assembly, we don't need the light from the world. We need the light coming from the Holy Spirit, who is the picture of oil. और हमारा स्थानीय कलीसिया में विश्वासी जीवन में जगत का रोशनी हमको नहीं चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा का रोशनी जो तेल के साथ तुलना किया गया है, उस रोशनी हमको चाहिए। If each believer is not individually reading the Bible and learning something from the Bible, he is not walking in light. अगर हर एक विश्वासी व्यक्तिगत रूप में अगर वो परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं, उसका मतलब वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते हैं। So when we don't learn anything from the word of God, but still we say we are in fellowship, God says you are a liar, you are telling the lies. और जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को ये कहते हैं कि प्रभु के साथ मेरा संगति है, तो प्रभु का प्रत्युत्तर क्या है कि वो हमको झूठे ठहराते हैं। If you don't have desire to love the word of God, you can pray about it. Father, I lost the love for the word of God. Give me a new taste, new appetite. और अगर आपके जीवन में किसी रीति से परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए जो इच्छुक नहीं है, तो परमेश्वर से आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु आपका वचन को सीखने के लिए मुझे लालसा दे। But if you're not opening the word of God and learning anything and coming to the local assembly mechanically, you are not in fellowship even though you're physically attending it. यद्यपि अगर परमेश्वर का वचन को आप लोग नहीं पढ़ते हैं और उस चर्च में आते हैं, मंडली में शारीरिक तौर से आकर के रहते हैं और कहते हैं कि आप संगति में हैं, उसका मतलब आप कभी भी संगति में नहीं हो सकते हैं। Now, we are called into this fellowship. We don't actually deserve, but we are called. 1 Corinthians 1:9. और पहला कुरिन्थियस उसका 1 अध्याय और 9 आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, हम इस फेलोशिप, इस संगति के लिए लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने हमको बुलाया है। He called us. He is calling inside. हम संगति के लिए बुलाए गए हैं। We don't deserve it. हम इसके लायक नहीं हैं। Why we don't deserve it is we have humiliated the Son of God upon the cross of Calvary. हम किस लिए इसके लायक नहीं हैं? इसीलिए लायक नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर उन लोगों को श्रापित बनाए, उनको लज्जा बनाए। He is the brightness of God's glory, but we behaved very shamefully towards him. वो परमेश्वर का तेजोमय महिमा है, लेकिन हम उस तेजोमय महिमा को देख नहीं पाए। So that's why we don't deserve it. इसीलिए हम इसके योग नहीं हैं। But he is calling, come, I'm inviting you. I know you don't deserve it, but I'm making you worthy with the finished work of on the cross of Calvary. So come inside. फिर भी वो अपने आप को उस काल्वर क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके बुला रहे हैं कि आओ और मेरे साथ तुम संगति करो। Once you come inside, what do?
जब आप उसके अंदर आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? You will say, because I don't deserve, but you called me inside, I will take the lowest place inside the house. और आप ये कहेंगे, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे अंदर बुलाए, तो जो जिस जगह पर आपने बैठने के लिए देते हैं उसका लायक नहीं हूँ, मैं एक अलग जगह में बैठूंगा। This is called humility. All of us should display humility in the local assembly because we don't deserve to be inside, but the Son of God called us inside. और ये है हमारा जो नम्रता, और प्रभु हमसे ये चाहते हैं हमारा स्थानीय कलीसिया में जब भी हम संगति रखते हैं तो प्रभु के सामने ये कहना है कि हमारा जो नम्रता को प्रकट करना चाहिए। We don't come inside and desire high things. I want to occupy a place of influence and a high position. You don't do that. और हम अंदर आने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे अच्छा अच्छा पदवी चाहिए या अच्छा एक कुर्सी चाहिए करके हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। If the Lord calls you for certain things, that's a different thing, but you should not have that desire inside. If the Lord calls you for a responsibility, that's okay, but still you don't desire it inside. Uncle, would you please repeat it once again? Yeah, it's, I think, a signal. Yeah, if the Lord calls you for to be the elder of the assembly or some prominent person, that's okay, but you should not have individual desire for that. और अगर प्रभु यीशु, अगर परमेश्वर आपको स्थानीय कलीसिया का एक नींव बनाते हैं या एक एल्डर बनाते हैं और उसमें आपको घमंड करना नहीं चाहिए। Because even if you have a position of a teacher and an evangelist or an elder, but still you can show the humble mind. और अगर आप उस कलीसिया स्थानीय कलीसिया का एक शिक्षक हो या प्रचारक हो या अगुवाई हो, तब भी हमको एक नमूना बनना चाहिए, एक नम्रता जीवन व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है। In John chapter 13, the Lord of Lords is found at the feet of disciples washing their feet. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में हम देखते हैं जो परमेश्वर है वो मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया और अपने ही शिष्य लोगों का पैर को धोते हैं। I'm sure the angels would have wondered because they never saw such a sight any time in their lifetime. मैं तो ये सोचता हूँ कि जब स्वर्गदूत लोग ये विषय को देखते हैं वो सचमुच में चौकित हो गए हैं क्योंकि इस प्रकार का कार्य वो कभी नहीं देखे थे। They would have wondered what made our God, the one, the Son of God, to wash the feet of these people, these human beings. What is the greatness about them that he had to wash their feet? और वो ये भी सोचे होंगे कि हमारा इतना बड़ा परमेश्वर है, इन एक आदमी के, एक मनुष्य का, जो पापी मनुष्य का पैर को साफ करने का क्या कारण है। So they wouldn't have got the answer. We don't know. We don't understand. The sinful people have no merit in them, no goodness in them, but still he is washing their feet. और हम नहीं जानते हैं कि वो उन लोगों को उत्तर मिला होगा, लेकिन इस प्रकार से एक पवित्र परमेश्वर एक पापी मनुष्य का और पापी लोगों का पैर को साफ करते हैं, उसका मतलब क्या दिखाता है कि परमेश्वर का नम्रता को दिखाता है। And also, if we come into the house and take a place of lowly place without desiring for anything, that means it doesn't mean that you don't do anything in the local assembly. और जब हम घर पे आते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक छोटे से छोटे जगह हमको मिले, उसका मतलब ये है कि हम सचमुच में उस छोटे जगह का भी योग नहीं है। I won't do anything. I'll sit at the back and quietly go away. No, that's not humility. That's a false humility. और ये नहीं है कि अब चर्च में कलीसिया में आकर के एक पीछे में बैठ करके मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट सिवाय में बैठूंगा और उसके बाद आराधना के बाद चले जाऊंगा, वो नम्रता नहीं होता है। Yes, it is true that we don't desire for any higher position or a name among the other people, but you will inquire, I will simply please my Lord.
और ये नहीं है कि सचमुच में आप उसका योग नहीं है और आप वो अंदर जा करके एक बड़ा पद भी आपको चाहिए करके, वो नहीं होता है। So what you will do is what actually pleases him. Then you will inquire on the Lord's Day morning, Sunday, I will offer him spiritual sacrifices. और हमको ये सोचना बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा और ऐसा कौन सी चीज हम परमेश्वर को दे करके प्रसन्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आत्मिक बलिदान ही दे सकते हैं परमेश्वर को। First Peter chapter 2 and verse 5, he tells that we have to offer spiritual sacrifices. पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 2 आयत में इस प्रकार से प्रेरित पत्रस कहते हैं कि हमको आत्मिक बलिदान को चढ़ाना है। And on the Lord's Day morning, if you are a brother, you'll open your mouth and say, Father, we are appreciating the humility of Christ. We are offering humility of Christ to you because you love it, you like it. और प्रभु का दिन में हम जब आराधना करने के लिए आते हैं, हम प्रभु का जो कार्य को हम शाबाशी दे करके प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए, वो है आत्मिक बलिदान। He had the forgiving nature. He forgave everyone. Also teach us how to forgive other people, and you offer that to the Father, and the Father says, you gave me exactly what I like. और प्रभु के एक स्वभाव ये था कि उनको उनका जो पाप को क्षमा करने के लिए और उस स्वभाव के लिए हम परमेश्वर से कहते हैं और हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं तो प्रभु खुश होते हैं। So you will give that. That's called humility. Humility is twofold. One, you don't desire a place or prominence. At the same time, you try to please the one who called you inside the house. और इसमें हम ये देखते हैं कि दो प्रकार का चीज देखते हैं। वो एक पहला विषय है कि उस संगति को आप उसके लायक नहीं हैं, और पहली बात आप उसके लिए कोई एक अच्छा पदवी के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। All right, we move forward. The fellowship in the First Corinthians, we see that he is the Lord. At the end of this verse in English, Jesus Christ our Lord, he is the Lord. और हम पहला कुरिन्थियस उसका 1 अध्याय 9 आयत में दिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। If he is not the Lord, we can't have fellowship with God. अगर वो प्रभु नहीं है तो उनके साथ हम संगति नहीं रख सकते हैं। What do you mean by Lord? आप प्रभु का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं? First thing is you should have a very high attitude that his position and place and dignity is very high. He's exalted on the throne. और सबसे पहली बात प्रभु का जो सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि वो बहुत ही ऊंचा स्थान पर विराजमान है और उनका जो महिमा अपरंपार है, तो ये सारे विषय को आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। So you should have a very high attitude about our Lord and Savior Jesus Christ, because in Philippians 2 you can see God exalted him and given him the highest place. और जब हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में जब देखते हैं तो प्रभु उनको किस प्रकार से उनको एक्सॉल्ट करते हैं, उनको ऊपर में बिठाते हैं और महिमान्वित करते हैं, उसके विषय को समझना बहुत ही आवश्यक है। So each of us should appreciate these things. और हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को इसके विषय में शाबाशी देना बहुत ही जरूरी है। And the Lordship demands that you totally surrender yourself. That means he has absolute right over my life, my body, my everything. और प्रभु ये चाहते हैं कि आपके जीवन में उस प्रभुत्व करने के लिए आपके जीवन में जितना भी कार्य है वो प्रभु ही स्वयं संचालन करे, वो प्रभु ये चाहते हैं। Even in Acts chapter 2 and verse 33, it's written here, God exalted him and given him the high place, a very high position.
और हम जब प्रेरितों का काम उन दूसरा अध्याय 33 आयत में जब देखते हैं, तो पिता परमेश्वर ने भी उनको अपने दाहिने हाथ में बिठा करके उनको किस प्रकार का महिमान्वित किए हैं, उसका विषय देखते हैं। How do we know that the Savior was received in heaven? हम किस प्रकार जान सकते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता वो स्वर्ग में ग्रहण योग्य थे? Because the Holy Spirit was sent down from heaven. और हमको जानने का एक ही विषय है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस दुनिया में भेजा गया। So that is an indication that the Savior was received in heaven and he is the Lord of all. और वही है प्रभु यीशु मसीह का स्वीकरण का एक चिन्ह, जैसा कि पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा गया। So we'll go back to the first slide and see that the doctrine leads to fellowship. Now the fellowship leads to breaking of bread. और पहला विषय हमने देखा है कि संगति प्रेरितों का शिक्षा पाने के लिए वहां लेके जाते हैं, और साथ साथ में रोटी तोड़ने में भी मदद करता है। Now, breaking of bread, we do it on Sunday or the Lord's Day morning. और हम ये रोटी तोड़ना हम कब करते हैं? कि प्रभु के दिन में, जो कि इतवार के दिन में। Now, I want to tell three things about this breaking of bread. There are many beautiful things, but only three things tonight. बहुत सी ऐसा अच्छा बातें हैं ये रोटी तोड़ने के बारे में। वो सारे बातें मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ 3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। The first thing is, it is the Lord's Supper. और ये पहला विषय आप लोगों को जानना है कि ये प्रभु भोज है, प्रभु का भोज। Now, it is an addition of two things. Prabhu, Bhoj, two things are added there. और इसमें 2 विषय को मिलन किया गया है, एक तो प्रभु है और दूसरा भोज है। The second thing is very simple. Everyone in this world eats food. और दूसरा विषय बहुत ही साधारण है कि सब लोग को भोजन चाहिए। So everyone in this world understands what is the supper, because our Savior did not use complicated examples and great things. He used simple things to convey profound meanings. और हमारा प्रभु यीशु मसीह कठिन विषय इसमें प्रयोग नहीं किए हैं, बहुत ही साधारण विषय प्रयोग किए हैं, जैसे कि साधारण तौर से सब लोग, सारे इंसान लोग इसको समझ सकते हैं भोजन के बारे में। But supper is very simple, but Prabhu, God is very high word, a very big and huge word. और सचमुच में भोजन एक साधारण शब्द है, लेकिन वो प्रभु का जो शब्द है वो असाधारण वो शब्द है। So it's not our supper, it is the Lord's supper. ये हमारा भोजन नहीं है, ये प्रभु का भोज है। We have our own supper which we eat at our house, but not in the church or the local assembly. हमारा भोज जो हमारा घर में होता है वो है हमारा भोज, लेकिन प्रभु का घर में नहीं है, जो चर्च में कलीसिया में होता है वो नहीं है। Lord means it speaks of dignity. और प्रभु मतलब परमेश्वर का It's a dignity. It is परमेश्वर का पदवी को दिखाता है। So on the Lord's Day morning, not now because of the COVID, we may not partake in some places. That's all right. But in the normal conditions, when we go to the house of God on the Lord's Day morning, you have to go with reverential fear, because it is a very dignified act there. और आज के दिन में हम लोग इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि कोविड-19 के लिए, लेकिन जब हम प्रभु के सामने आराधना करने के लिए जाते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हम प्रभु के प्रति भययोग होना बहुत ही आवश्यक है। Every believer must maintain dignity there. और सब लोग प्रभु के बारे में बहुत ही ऊंचा सोच विचार रखना बहुत ही जरूरी है। No one should lower the dignity of the Lord's Supper. प्रभु भोज के विषय में कोई भी उसको
नीचा नहीं दिखाना है। You should come prepared to maintain the dignity. और ये जो परमेश्वर का जो महानता को हमारे जीवन में लागू करना और प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। How do you come prepared to partake in the Lord's Supper? Pardon me, uncle, I'm not able. How do you prepare and come to partake in the Lord's Supper? आप लोग अपने आप को किस प्रकार तैयारी करते हैं प्रभु भोज से शामिल होने के लिए? Here is one thing, how to come prepared for the Lord's Supper. और इसमें लिखा गया है कि हमको किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है प्रभु भोज में शामिल होने से पहले। He says here, the same night he was betrayed. और इसमें देखते हैं जिस रात में वो पकड़वाए गए थे, What happened that night when he was betrayed? और जिस रात में वो पकड़वाए गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था? You read it in Luke's Gospel later on, when the Savior instituted Lord's Supper for the first time. जब प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में, प्रभु भोज के विषय में सबसे पहले बार स्थापित किए। Let us see, let us turn and read it. Turn with me to Gospel according to Luke. आइए हम लूका रचित सुसमाचार में जाते हैं, chapter 22. और उसका 22 अध्याय, verse 20. Read, brother. Can you read in Hindi? और उसका 20 आयत हम पढ़ेंगे। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया गया है नई वाचा है। Okay, so this is where he instituted the Lord's Supper. ये वो जगह है जब परमेश्वर उस प्रभु भोज को स्थापित किए थे। What happened 2 verses later in verse 24? और 24 के बाद 24 के बाद क्या हुआ हम जानते हैं। Read, brother. कोई भाई पढ़ दीजिएगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। Enough, brother. So there was an argument who is the greatest among them. और उनमें से ये वाद विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है। That happened the night he was betrayed. और ये उसी दिन हुआ, उसी रात में हुआ जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे। In 1 Corinthians 11:20, the Spirit of God is reminding, be careful, whatever the disciples did on the night the Savior was betrayed, you don't do that. और पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 20 आयत हमको ये याद दिलाता है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, उस रात शिष्य लोग जो किए थे उस विषय को कभी भी अपने जीवन में नहीं लागू करना। On one side, the Savior is filled with the sorrow and he was waiting for the cross. The other side, the disciples were thinking who is the greatest among them. और एक साइड में प्रभु यीशु मसीह उस पाप का बोझ को लेकर के बहुत ही दुखित, और जो आने वाला जो क्रूस को लेकर के बहुत ही दुखी थे, और दूसरे तरफ पे हम जब देखते हैं ये शिष्य लोग ये वार्तालाप वाद विवाद करते हैं कि कौन हमारे में से कौन सबसे बड़ा है। When it is like a train track, the train track has two rails. और ये उसी प्रकार है जिसके कि रेल की पटरी जैसा है। So both the tracks will go parallel, otherwise the train cannot go. और ट्रेन का पटरी एक समान जाना है, नहीं तो ट्रेन नहीं जा सकती है। If one track goes to the side, then the train will derail. और अगर एक पटरी अगर थोड़ा सा भी साइड हो जाता है तो ट्रेन क्या हो जाती है, एक्सीडेंट होने का हो जाती है। So the Spirit of God is telling, the way Christ is thinking that night, the disciples should also think the same way the same night. और प्रभु का आत्मा हमको ये याद दिलाता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस रात में उनका मनभाव था,
उसी प्रकार मनभाव चेले का भी होना चाहिए। Then only you will partake worthily in the Lord's Supper. तभी आप उस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। Otherwise, the whole thing will derail and you are partaking unworthily, and there is a danger of coming under divine chastisement. और अगर उस प्रकार से नहीं करते हैं तो उसका मतलब उस प्रभु भोज में शामिल होकर के अपना ऊपर आप समस्या लेके आ रहे हैं। So, Saturday night, I will sit down. और शनिवार के रात में मैं बैठूंगा। That is today, after this meeting, I will sit down and examine myself, because tomorrow morning I have to partake in the Lord's Supper. और आज रात में मैं परमेश्वर के सामने में बैठूंगा और अपने आप को परखूंगा, क्योंकि काल परमेश्वर का दिन है और प्रभु भोज में शामिल होना है। Did I really partake in the sufferings of Christ, the way he underwent suffering that night? Did I ever sit down the whole week and think like that? क्या मैं पूरे सप्ताह प्रभु यीशु मसीह का दुख में सहभागी हुआ और उस प्रकार से प्रभु भोज में मैं शामिल हुआ क्या? Or did I think that I'm better than that brother? I can speak better than that brother. I'm doing God's work more than that brother. Am I thinking I'm greater than other people? क्या मैं उस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे प्रचार कर सकता हूँ, मैं अच्छा प्रभु का सेवा करता हूँ, उन लोगों से ज्यादा कलीसिया मेरा अंडर में है करके सोचते हैं? Then you are thinking like exactly like the disciples. सो अगर आप ये सोचते हैं उसका मतलब उस प्रेरितों के जैसा मन भाव है आपका। God is telling us you should enter into the mind of the Savior who was just about to go to the cross. प्रभु को ये सिखाते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह का मन में जिस प्रकार का दुख था, उस दुखी में भी हमको सहभागी होना है। Then you will partake in the Lord's Supper according to the divine expectations. और जब हम इस प्रकार से उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो ईश्वरीय के जैसे हम लोग उस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। Then you had fellowship with the Father and the Son. तभी हम उस पिता परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। So fellowship should lead to the breaking of bread. If the breaking of bread we don't partake the way I just mentioned some of them, then something wrong with the fellowship then. और अगर हमारा जो संगति रोटी तोड़ने के साथ है तो हम किस प्रकार से रोटी तोड़ते हैं, हम प्रभु का जो दुख में दुखी होकर के हम रोटी तोड़ते हैं या हम उस चेलों के मनभाव के साथ हम रोटी तोड़ते हैं। No matter how many great talents you have, how better you can preach, how better you can cook better than other sisters, whatever is the talent, we should never ever think I am better than other people. हमको ये कभी सोचना नहीं है कि मैं कितना अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मैं कितना अच्छा खाना बना सकती हूँ और मैं कितना प्रभु के लिए और भी उपयोगी हो रहा हूँ। ये कभी भी हमारे जीवन में नहीं सोचना चाहिए। That will spoil the fellowship. वो हमारा प्रभु के साथ जो संगति है उसको नष्ट कर देती है। Then what do we remember at the Lord's Supper? और हम उस प्रभु भोज में हम क्या याद करते हैं? It's written here, you just remember me, Christ said. और इसमें लिखा ही गया है कि आप मेरा मुझे स्मरण करो। That means me means it can be anything. It can be the deity of Christ, the holy humanity of Christ. It is the work of Christ. All these things we can remember. मुझे मतलब प्रभु का ईश्वरत्व होगा या प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व होगा या प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का कार्य के बारे में भी हो सकता है। But we should never forget his death. लेकिन हम उनका जो मृत्यु के बारे में कभी भी नहीं भूलना है। Why? Without the death we are not saved. और क्योंकि हम बिना मृत्यु के साथ हम लोग उद्धार नहीं पाए हैं। It is the death of Christ that brings us there. और ये वो है प्रभु का मृत्यु के द्वारा हम वहां पहुंचते हैं। And
Finally, according to Acts chapter 2 and verse 42, the last thing is they were in praying. That means the breaking of bread and prayer. और They were हम steadfastly in prayer. प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और 42 आयत में ये देखते हैं, तीसरा विषय देखते हैं, वो लोग उस प्रार्थना में सहभागिता रखते थे. That means in a good fellowship, not only it leads to good remembrance meeting, but also a good prayer life. और ना ही केवल एक अच्छा संगति जो बात हम करते हैं उसको हम याद करते हैं, लेकिन एक प्रार्थनामय जीवन को भी याद कराता है. It is the prayer that supports the doctrine. It is the prayer that supports the fellowship. It is the prayer that supports the Lord's Supper. और ये जो प्रेरितों का शिक्षा, प्रभु भोज और संगति, प्रार्थना ही उनको मदद करते हैं. Now, when you do prayer, I want to leave one beautiful thing with you so that we can all do intelligent prayers. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में आपको एक बहुत ही अच्छा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं. Now, you divide the prayer into two halves. और उस प्रार्थना को आप दो भाग में बांट दीजिएगा. You can see the blue part and the red part. एक नीला पार्ट और एक लाल रंग का चिन्ह आप देख सकते हैं. So the blue part is the first half and the red part is the second half. और नीला भाग जो देखते हैं वो पहला भाग है और जो लाल भाग है वो दूसरा भाग है. In the red part, you keep whatever you like. If you have health concern, if you have financial difficulties, whatever is the requirement, put it in the red part. और इस लाल रंग में उस भाग में अपना स्वास्थ्य के बारे में और अपना जो व्यक्तिगत जो विनतियां हैं, जैसा फाइनेंशियल नीड, पैसों का जरूरत या और भी तमाम जरूरतों के बारे में आप उसमें रख सकते हो. Then what do you keep in the first half, the blue half, which is the first, like a head and tail? और वो पहला भाग में हमको क्या रखना चाहिए जो कि सिर और उसका पूंछ समान है. In the head, you will keep anything belonging to Christ. और ये जो पहला भाग में प्रभु का जो विषय है उसको रखना जरूरी है. His virtue, his I think in Telugu we call it gunaganamulo. प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करने के विषय में. So here we keep the top one in the first half of our prayer. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का गुण के बारे में हमको बोलना है पहला भाग में. There are two sisters in John chapter 11 and verse 3, and they are praying to the Savior. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 3 आयत में दो बहनों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं. Their prayer was one of the intelligent prayers. और वो लोगों का प्रार्थना एक बुद्धिमान का प्रार्थना था. In the prayer, they said, the person whom you love. और उनका प्रार्थना में ये था जो व्यक्ति को आप प्यार करते हैं. So they said, Jesus loves Lazarus, that person died. और वे उस प्रार्थना में ये कहते हैं, प्रभु आप जिसको प्यार करते थे लाजरस को, वो मर गया. It is also true that Lazarus loves Jesus Christ. और ये भी सच है कि लाजर भी प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है. But they did not mention that. They only mentioned that Jesus Christ loves Lazarus. लेकिन वो लोग ये विषय को प्रभु के सामने में नहीं कहा, लेकिन प्रभु उनको जो प्यार करते थे उसके विषय में कहा. Now, the God's love towards us is always 100%. It never comes down. और जब परमेश्वर हमसे प्रार्थना करता है जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो वो 100% है, वो कभी कम नहीं होता है. If you love him, it is 100%. Even if you don't love him, it is still 100%. और अगर आप उनको प्यार करते हैं या नहीं करते तब भी ये 100% है. His love is not based on whether we love him or not. His love is based upon his own nature.
और उनका जो प्रेम है उसमें नहीं है कि क्या हम उनको हम प्यार करते हैं कि नहीं, लेकिन उनका जो प्रेम है, उनका स्वभाव है वो, Because his nature doesn't change, his love also doesn't change. क्योंकि उनका स्वभाव में कोई बदलावट नहीं आता है, इसीलिए उनका प्रेम में भी बदलावट नहीं है। But our love changes, it goes up and then goes down. One day we are on Himalayas, other day we are in Chambal Valley. हाँ, अगर हमारा प्यार के बारे में हम बात करते हैं, हम हिमालय में कभी चढ़ जाते हैं, नहीं तो कभी हम चंबल वैली में, चंबल का जंगल में फंस जाते हैं। But they did not pray that. They said, the person whom you love it, he died. He's sick. लेकिन वो लोग ये नहीं बोले कि प्रभु को वही चीज बोले कि प्रभु आप जिससे प्यार करते हैं वो अभी बीमार है। So that is the virtue of Christ. That is the guna of Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का गुण है। So the red part is the first half, Bimar is the second half of the prayer. और सबसे जो लाल रंग में लिखा गया है वो है दूसरा पाठ है, और बीमारी है वो पहला विषय है। So they kept the virtue of Christ before their prayer request that our brother is sick. हाँ, वो सबसे पहले जो परमेश्वर का गुण के बारे में बोला, फिर दूसरे भाग में अपना जरूरत के बारे में प्रभु के सामने रखा। And Jesus Christ heard that prayer. और प्रभु यीशु मसीह उनका प्रार्थना को सुना। And Lazarus was brought to life. और लाजरस को प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु से जीवन दान दिया। All the saints in the great men of in the Old Testament, their prayers are exactly like that. और पुराने नियम का जितने भी संत लोग हैं, ठीक इसी प्रकार ही उनका प्रार्थना था। Nehemiah chapter 1, you read it, Nehemiah mentions about the virtues of God before he tells about Jerusalem. और नेहम्याह का प्रार्थना के विषय में, उनका प्रार्थना जीवन के विषय में हम जब देखते हैं, वो सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले वो परमेश्वर का गुणों को कहते हैं। So if you gain the knowledge of God, your prayer will improve, because from the knowledge of God you will take the virtues of Christ and put it in your prayer as the head. और जब आप परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर अब जब प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रार्थना का भाग ये होगा कि परमेश्वर का गुण को सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद अपना जरूरत को परमेश्वर के सामने रखेंगे। And finally, I will show one thing from Daniel's prayer. He too prayed the same way. और अंतिम में दानियल के प्रार्थना में भी हम ये देख सकते हैं। He is saying, please listen to the prayer because of your mercy, not because we are praying or because we are good people. और वे ये प्रार्थना करते हैं, आप मेरा प्रार्थना को सुनिए क्योंकि आपका उस दया के द्वारा। So these are the four beautiful things. So fellowship is like a link. The first link like a chain, first link, second link, third link, and the fourth link. और सहभागिता इन चारों चीजों से मिली जुली है, जैसे चेन जैसे। So fellowship plays an important role for doctrine and the breaking of bread and the prayer. Let us be steadfast in all four. और ये जो संगति है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, प्रेरितों का शिक्षा में और प्रभु भोज में भागी लेना और प्रार्थना करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Once again, thank the Lord for this blessed opportunity, and also thank the local assembly at Gwalior. मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और स्थानीय कलीसिया ग्वालियर का